थैंक यू सब. ठीक है. Okay, so today we are learning about GitBash. GitBash is a command line interface that lets you give commands to your terminal. Now, the अभी तक मैंने basically I will start from very beginning. So let me clear the screen. The command for clearing the workspace is clear screen. Now let's say we want to create a folder. Let's say workshop. So the command is mkdir. mkdir का full form होता है कि आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं. So let's say we say git workshop. Let's say git bash workshop shoop whatever. Yeah. So this command creates a new directory which is known as git bash workshop. Now if we want to move to that particular directory that we just created, the command is cd. Cd basically means to change the directory, and name of the directory in which we want to go in work shoop. Yeah. So now currently we in the git bash workshop directory. Now if we want to move again, like if we want to go back to the desktop directory again, the command is cd dot that slash cd space dot slash. Now we are again in the desktop directory. Now let's say if we want to delete this particular folder, what we do, the command is rm, and I guess rs bhi hota hai. Yeah, rm rs, and name of the directory git bash work. Now it just deleted that git bash workshop directory that we created. Now let's say we want to create some files. What would be the command for that? Abhi tak what we have done is that we have learned how to make a new folder, mkdir git bash workshop. It creates a new folder. Then if we want to move to that particular folder, the command is cd git bash workshop. Then we move to that particular folder. Now, if we want to go back to that desktop folder again, the command is cd dot slash. We went to the desktop folder. And then to delete that particular folder, the command is rm remove. RF ka full form, I don't know what is, but it is basically to remove the particular folder that is git bash workshop. So this is the basic stuff. Let me clear the terminal again. I will create a new folder now, git mkdir, and I will name it, let's say, bash workshop. cd bash workshop. Yeah. And let's say we want to create 3 files inside that particular directory. The command is touch. Command for creating a file is touch. And let's say we want to create 3 files: index.html, styles.css, and app.js. This command will create these 3 files: index.html, style.css, and app.js. And if we want to list whatever in it, we just say ls, I guess. Yeah. ls means listing whatever is present inside that particular directory. So currently inside the bash workshop folder, we have 3 files: app.js, index.html, and style.css. Now, if we want to remove a particular file, the command will be rm, name of the file, let's say index.html, and it will remove that particular. If we press ls again, now we have only 2 files. Is it clear, everyone? क्लियर है. ठीक है. तेज तो नहीं पढ़ा रहे ना? नहीं स्लो पढ़ा रहे. ठीक है. Okay. Now let's say if we want to go inside the contents of the particular file, let's say if we want to write something inside index.html, then I guess the command is something cat or nano. Let me see.
ओके, कैट से हम लोग कंटेंट देख सकते हैं और नैनो से उसको टेक्स्ट एडिटर में खोल सकते हैं. ओके. Okay, let's say we want to write something inside index.html. Then I guess the command is nano, name of the file. Since index.html is not present, let's create it again. That's what I said. And then we want to type something inside it, index.html. Provided you have a nano editor, I guess. Yeah, we can write something here. Let's say I type h1 and let's say hello, and yeah, just close it. This is how we can write inside a file inside a terminal. And if you want to exit it, just press, I guess, X, enter X, I guess. Wait, shift X. Shift X, control X, something like that. Yeah. So if you want to exit it, just press control X, then press Y, and then press enter. Yeah. Then we are out of it. Is this clear? How to modify files inside of a terminal? हाँ क्लियर है. हेलो. ठीक है, ठीक है. ओके, सो अब कंटेंट्स अगर देखना उस फाइल का तो कमांड इज कैट. कैट और नेम ऑफ द फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल. इट विल शो द कंटेंट ऑफ h1 हेलो h1x. तो अभी तक हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 7 8 कमांड पढ़ लिए. mkdir टू क्रिएट अ फोल्डर. cd कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, mkdir टू क्रिएट अ फोल्डर. cd to change the directory. Touch to create new files inside a folder. ls to list the files inside a folder. rm to remove a file. rm/rf to delete a folder. ls to list, obviously. Touch to create files. Nano to write something inside of a file from the terminal itself. And cat is used to show the contents of a particular file. Now, there is also one command pwd. pwd का full form होता है public working directory. It shows what directly you are currently in. For example, अभी हम लोग इस डायरेक्टरी में है, c users 9163 desktop bash workshop. ओके, सो बेसिकली यही सब कमांड हो गए. देन आई गेस और क्या कमांड बचे हैं. या cd में एक चीज इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लो अगर हम लोग इसके अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं, cd सॉरी mkdir and html and then mkdir cd html. ठीक है. और अगर हम लोग को डायरेक्ट डेस्कटॉप में जाना है तो कमांड होगा cd डॉट डॉट स्लैश मतलब कि एक डायरेक्टरी ऊपर. मतलब अभी हम लोग बैश वर्कशॉप में जाएंगे और डेस्कटॉप में जाना है तो एक और डॉट डॉट स्लैश. तो डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ जाएंगे. समझ में आया ये? हेलो. हाँ समझ गया. ठीक है. ओके, तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं. जैसे मान लो कि नेस्टेड हम लोग को फोल्डर्स बनाने हैं तो mkdir सॉरी सबसे पहले तो cd करना पड़ेगा. cd बैश वर्कशॉप html. एंड इसके अंदर दो नेस्टेड फोल्डर्स और बनाने हैं हम लोग को, जैसे css और उसके इनसाइड जावा सॉरी js. तो उसका कमांड होगा mkdir css/js. तो दो ऐसे नेस्टेड डायरेक्टरीज बन जाएंगी इसके अंदर. mkdir कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरी css नो सच फाइल. ओके, आई गेस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया हम यहाँ पर, बट VS कोड में ऐसे हो सकता है. ठीक है. तो अब जैसे मान लो क्या बचा है, कॉपी करना है ना. हाँ, कॉपी करने वाला कमांड क्या होता है. लेट मी सी. कैट हो गया, नैनो हो गया, ls हो गया, lsa हो गया, लिस्ट ऑल फाइल इंक्लूडिंग हिडन cd cddir. ठीक है, cd डॉट डॉट mkdir. टच हो गया, rm हो गया, rmr हो गया, डिलीटेड. ठीक है. cp. अच्छा, सोर्स और डेस्टिनेशन. कॉपी अ फाइल और फोल्डर
और मूव सोर्स और डेस्टिनेशन। तो दो दो कमांड्स और हैं। अगर किसी का कंटेंट कॉपी करना है तो आई गेस कमांड होता है, सबसे पहले तो मेन डायरेक्टरी में जाएंगे हम लोग, cd space डॉट डॉट स्लैश एंड इससे पहले लिस्ट देख लेते हैं क्या cd सोर्स हो जाएगा। सोर्स और क्या था, एक मिनट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन कहाँ पर कॉपी करना है। ओके, so let's say I want to copy the contents of index.html and index.html का जो source है वो होगा index.html और पेस्ट करना है कहाँ पर, इसको अगर कॉपी करना है और styles.css में अगर पेस्ट करना है। let's see this works. Let's see the content of styles.css. Yeah, so this command we can what we can say, we can copy the content of one file and we can paste it inside another file. Is this clear? हाँ क्लियर है। ठीक है, अब जैसे मान लो अब हम लोग को मूव करना है तो मूव का कमांड भी सेम है, mv मूव। और जैसे index.html को हम लोग को मूव करना है, एक और फोल्डर बना देते हैं। एक और फोल्डर है क्या इसमें? नहीं है तो mkdir ठीक है, और इसके अंदर मूव करना है तो उसका कमांड यही हो जाएगा, mv index.html to html। let's see now। या और अगर cd.html पे जाएं हम लोग, आगे समझ में ये कैसे मूव किया हम लोग ने index.html को html वाले फोल्डर के अंदर डाल दिया। हेलो, आ गया समझ में। ठीक है। एक बार मैं शुरू से सब बता रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले फोल्डर बनाने का कमांड होता है mkdir। जैसे हम लोग को CSS का फोल्डर बनाना है, CSS का फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर के अंदर जाने का कमांड होता है cd चेंज डायरेक्टरी नेम ऑफ द फोल्डर। हम लोग CSS के अंदर चले गए, अगर हम लोग को वापस एक फोल्डर पीछे जाना है तो उसका कमांड होता है cd डॉट डॉट स्लैश। उसके बाद कोई फोल्डर को रिमूव करने का कमांड होता है rm। सबसे पहले लिस्ट करने का कमांड होता है ls, वो लिस्ट कर देगा जो भी चीजें आपके अंदर। फोल्डर को रिमूव करने का कमांड होता है rm स्लैश rf नेम ऑफ फोल्डर css। ठीक है, css का फोल्डर रिमूव हो गया। अब हम लोग को नई फाइल क्रिएट करनी है तो टच इंडेक्स डॉट सी एस एस, लेट से नेम ऑफ द फाइल इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल क्रिएट हो गई। चेक कैसे कर लेते हैं, ls। ठीक है, pwd कमांड क्या करता है, कौन सी डायरेक्टरी में है हम लोग वो बता देगा, जैसे कि अभी हम लोग इस डायरेक्टरी में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी फाइल के अंदर आपको लिखना है तो उसका कमांड होता है नैनो नेम ऑफ द फाइल, और वो टेक्स्ट एडिटर को खोल देगा। तो जैसे मान लो कि अभी हम लोग देखते हैं पहले, हाँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस के इंडेक्स डॉट सी एस एस के अगर अंदर हम लोग को कुछ लिखना है तो उसका कमांड होगा नैनो नेम ऑफ द फाइल इंडेक्स डॉट सी एस एस। अब ये नैनो एडिटर खोल दिया, हम लोग कुछ भी लिख देते हैं इसके अंदर। बॉडी बेसिकली सी एस एस का कोड है ये, और इसमें जैसे हम लोग लिख देते हैं कि कलर हैश टैग 000, या इट इज जस्ट अ ब्लैक कलर। और इसको बंद कर दिया हम लोग ने। एग्जिट करने का कमांड होता है कंट्रोल एक्स, इसको सेव करने के लिए वाई और एंटर। अब सेव हो गया ये। ठीक है, अगर हम लोग को इस फाइल का कंटेंट देखना है इंडेक्स डॉट सी एस एस का जो अभी हम लोग ने लिखा है, तो उसका कमांड होता है कैट इंडेक्स डॉट सी एस एस। हम लोग का उसका कंटेंट मिल गया। अब अगर हम लोग को इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर जो भी लिखा है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कॉपी करना है तो उसका कमांड होता है
एक मिनट, डिड एनीवन से समथिंग? कंट्रोल प्लस ओ से भी राइट कर सकते हैं। अच्छा, ओके, नाइस, आई विल ट्राई। ओके, तो बेसिकली अगर जैसे मान लो हम लोग को कॉपी करना है इंडेक्स डॉट सी एस एस के जो भी अंदर है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कॉपी करना है, तो उसका कमांड हो जाएगा सीपी इंडेक्स डॉट सी एस एस, और किधर कॉपी करना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर का कंटेंट देख लेते हैं, तो कमांड हो जाएगा कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो उसके अंदर ये चीजें कॉपी हो गई। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली एक चीज ये है कि जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हम लोग के पहले चीजें थी वो गायब हो गई। ठीक है, अब हम लोग को जैसे मान लो इंडेक्स डॉट सी एस एस को मूव करना है एक और सी एस एस के फोल्डर में, तो हम लोग एक पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एम के डी आई आर सी एस, और उसके अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस को मूव करना है, तो उसका कमांड हो जाएगा एम वी नेम ऑफ द फाइल दैट नीड टू बी मूव इंडेक्स डॉट सी एस एस वेयर टू बी मूव सी एस एस फोल्डर के अंदर। ठीक है, सी एस एस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और देख लेते हैं, बस मोस्टली यही है। और क्लियर करने का, अगर आपको जो भी आपने लिखा उसको क्लियर करना है तो उसका कमांड हो जाएगा क्लियर, टर्मिनल क्लियर हो गया। एग्जिट करना है टर्मिनल के लिए तो आप एक्स भी दबा सकते हैं, बट हम लोग को वो डेवलपर बनना है तो एग्जिट दबा दो एंड वी आर आउट ऑफ द टर्मिनल। विनीत स्टॉप द, रुक जाओ। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस एवरीवन? Anyone have any questions? Please feel free to ask. I will upload the video on YouTube by the way. जिसको कोई क्वेश्चन नहीं है वो चैट में लिख दो, ऑल अंडरस्टूड। Okay, great. Uh, does any one of you, Man, Adil, Vanshika, do you guys have any questions? Just write it in the chat here. Oh, click here, open chat, and write it here. If you guys have any question, if not, I can stop the recording. I will ask. Man and Vanshika, you two guys also write, please. Okay. Vanshika, you too, please. Okay, I guess Vanshika is not responding. We need to stop the recording, I guess.